Okay, good evening everyone. I hope I'm audible to everyone. If I'm audible, please do make a comment regarding the receptivity of voice if I'm audible to you. So friends, as promised and as discussed yesterday also, and this is in connection with the CAPF paper 2, wherein we shall be bringing out some interesting topics for you that will be helpful so far as writing an effective and high scoring essay, okay, in CPF UPSC exam. Yes, am I audible too, first of all? Yes, okay. So it is our endeavor, as we promised yesterday also through a Zoom call, that it is our endeavor to provide you best stuff, subject matter, whatever we shall be discussing here, so far as paper 2 essay topics are concerned, that will cover a range of areas, right from social issues to polity and governance issues to historical and cultural issues. But my focus shall be on polity and governance issues, which crop up now and then, and we shall be doing a kind of post-mortem of all those issues, right, so that we can collate the data जो हमें data चाहिए, ठीक है. Let me converse in both the languages. I hope yes, I'm audible to you all. Yes. Okay, thank you so much. Okay, so we shall be trying to decode the different topics from the subject of polity and governance, right? And after decoding those topics, we shall be trying to collate the material, how to write an effective essay on a particular topic that we shall be taking up, and how to collate the data, because to write an effective essay, you must be aware of the fact that some parameters must be kept into consideration. सबसे पहले उसकी introduction काफ़ी effective होनी चाहिए, जो topic आप select कर रहे हैं essay का, right? Then उसकी जो essay की body है, उसमें data, because after all you are writing an essay, उसमें डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जैसे हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. एंड देन कंक्लूजन काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए. इट विल बी बेटर अगर आप अपने एस्से की इंट्रोडक्शन जो है एक कोटेशन से शुरू करते हैं. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट even without quotation also if relevant quotation is not available, but it is better that if you start your essay with a quotation, so that quotation में थोड़ा उसका जो टॉपिक है उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन इफेक्टिव हो जाती है. तो दिस इज द मेन पैरामीटर्स विद इन विच यू आर सपोज टू राइट एन एसे. So without wasting our time, so this is our 5th day, so far as free classes are concerned, and subsequent to that, we have this free trial of these classes. After that, you will be getting, the regular live classes, for which you must join us as soon as possible, because बड़े important topics on range of issues, right, हम लेके आएंगे आपके साथ आपके सामने, और उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हमारे जनरल स्टडीज़ में भी काम आ सकते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेपर 2 में हमने एस्से लिखना है, और एस्से के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा मटेरियल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन एस्से पेपर, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस का एस्से है, चाहे वो आपके CAPF का एस्से है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन. सो टुडेज टॉपिक वी हैव सेलेक्टेड इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, दिस इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Okay, in this essay we shall be first of all understanding what does it actually mean. Criminalization of politics actually होता क्या है, ठीक है. Then I have started this essay with a quotation also, very interesting quotation, right? A very famous writer of 18th century England, right, British writer and poet also, right, Samuel Johnson once said that politics is the last refuge of the scoundrels. ठीक है, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि politics is the last refuge of the scoundrels, meaning that a person who fails in any other arena of his or her life, right, जो किसी और एरिना में सक्सेसफुल नहीं होता, वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आता है. इसी स्टेटमेंट से, इसी कोटेशन से पता लगता है कि पॉलिटिक्स इज अल्टीमेटली द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्क्वेंड्रल्स. यहाँ से आपको पता लग सकता है स्क्वेंड्रल मीन्स क्रूक्स पीपल, ठीक है, पीपल हु आर डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, राइट, वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आते हैं.
यहाँ से पूरी स्टेटमेंट जस्टिफाई होती है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्यों होती है और उसका क्या मतलब है। बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जो हर जगह फेल हैं, जो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है, अल्टीमेटली दे एम्ब्रेस द पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड दैट्स वाई राइट criminalization of politics becomes inevitable because such people enter into politics or into political arena. It means that criminalization of politics का मतलब सिंपल ये हुआ कि it is nothing but it's simply the entry of the people into the political life, right? To begin with, earlier times they used to support the political parties from outside, but over the last 2 decades हमने ये विटनेस किया कि अब ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हैं। ये पॉलिटिकल इलेक्शंस लड़ते भी हैं टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड अल्टीमेटली इलेक्ट भी होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। मीनिंग दैट criminalization of politics means the persons who not only contest elections but ultimately they even get elected to the various legislative bodies in our country across the federal system, चाहे वो पंचायती राज लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्टेट असेंबलीज हैं या पार्लियामेंट हैं, ठीक है। अगर हम रिसेंट डेटा एज पर इलेक्शन वॉचडॉग, बड़ा इंपॉर्टेंट एनजीओ रोल प्ले करता है जिसको हम एडीआर कहते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इन द रिसेंट लोकसभा द लोकसभा विच इज करंटली गोइंग ऑन, around 43% MPs are with criminal backgrounds who are sitting, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये डेटा भी आप कोलेट कर सकते हो बाई रेफरिंग टू द सोर्स ऑफ एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमें इसी एस में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। एक तो हमने इंट्रोड्यूस एस इसको एक कोटेशन से इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरा हमें ये बताने की ज़रूरत है कि रीजंस क्या हैं, वाई इज़ देयर अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, what has led to a spurt in the criminalization of politics, that spurt in the entry of criminals into the political arena. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न although there are several reasons, but सबसे बड़ा रीज़न ये है कि there is an unholy nexus between the politicians and the criminals, because दोनों के लिए win-win situations है। Politicians criminals की support लेते हैं because criminals have money powers as well as muscle power, right, and political parties अल्टीमेटली उनको इसी बेसिस पे फील्ड करती है बिकॉज दे हैव मनी एंड मसल पावर एंड दे आर फील्डर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा है कि विनेबिलिटी का फैक्टर, ठीक है, उस इंडिविजुअल का काफ़ी बढ़ जाता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, बिकॉज उसका मनी पावर भी है उसके पास और उसके पास मसल पावर भी है। इसलिए विनेबिलिटी इज द मेन रीज़न, राइट, that the political parties field the people with criminal background into the political life, into the political arena, right? दूसरा रीज़न आप ये कह सकते हो कि डिग्रेडिंग मॉरल्स इन द सोसाइटी, ठीक है। हमारी सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्टली कंसर्न, राइट, विद द विनिंग ऑफ इलेक्शंस रादर दैन विनिंग इलेक्शंस और फील्डिंग कैंडिडेट्स ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। उनका मेन पर्पज़ है कि कैसे सीट जीती जाए, राइट। That is absolutely of no concern for them कि वो इंडिविजुअल किस एंटी स्टेट से बिलोंग करता है, कितने क्रिमिनल केसेस है उसके पास, उनके पास, राइट, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और तीसरा हम रीज़न ये कह सकते हैं कि जितने भी लॉज, रीज़न ये भी है, सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि जितने भी लॉज और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रिगार्डिंग द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, क्रिमिनल की एंट्री पॉलिटिक्स में नहीं हो, राइट, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं और अल्टीमेटली जीते भी हैं, राइट, क्योंकि उनका मेन पर्पस उनका कैंडिडेट की विन एश्योर करवाना होता है। और जो हमारे वोटर्स हैं अल्टीमेटली दे जनरली वोट ऑन कास्ट एंड कम्युनिटी लाइन्स रादर दैन ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट। किस पे बेसिस पे उसको वोट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड अदर फैक्टर्स आर प्रिडोमिनेंट so far as election of that particular person is concerned. So this is another factor, right, responsible for the criminalization of politics. Now the next question जो हम इसी ऐसे में portray करेंगे कि what are the consequences if there is no curb on the criminalization of politics. The consequences क्या हो सकते हैं? तो ऐसे को अच्छा effective बनाने के लिए आप ये कह सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस को आप सोसाइटी के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो या कंट्री के बेसिस पे भी एनालाइज कर सकते हो, राइट।
कि अगर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं और अल्टीमेटली इलेक्ट होते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी इमोरलिटी की तरफ जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा यूथ जो है वो लीडर्स को एमुलेट करता है, लीडर्स को कॉपी करता है। अगर हमारे लीडर्स ही क्रिमिनल और टेंटेड बैकग्राउंड से आके इलेक्ट होते हैं तो हमारा यूथ भी उन्हीं की कॉपी करेगा। तो इसलिए सोसाइटी पे भी उसका राइट, सोसाइटी करप्शन की तरफ जाएगी, इमोरल होएगी, राइट। और जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल का, दैट विल टेक ए बैक सीट, राइट, सो फार एज पॉलिटिकल लाइफ इज कंसर्न। सेकेंडली, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल एरिना में भी है, बिकॉज अगर क्रिमिनल्स हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज में बैठते हैं तो see the quality of governance they can deliver, it will seriously affect good governance, because ultimately governance के लिए you are aware of the fact that good governance तभी होती है when the representatives of the people are held accountable towards the people। और वो accountability कब होती है? जब वो लोगों का काम करेंगे, लोगों की तरफ जवाबदेही होगी उनकी, राइट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन जीतनी है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो व्हेन क्रिमिनल्स एंटर इनटू पॉलिटिक्स तो इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि हमें बिना काम किए भी हुए भी हम नेक्स्ट टाइम दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज राइट वी आर getting ourselves elected on the strength of money and muscle power, we have nothing to do with the governance। तो इसलिए गुड गवर्नेंस भी सफ़र करेगी और देश की जो छवि है, देश का जो कैरेक्टर है, जो देश का जो हमारा जो पर्सोना है, राइट, वो भी सीरियसली इफेक्ट होगा। तो ये भी आपने ऐसे में कोट करना है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लास्टली अपने कंक्लूड करना है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट, रिगार्डिंग द decriminalization of politics, ठीक है। So much so that in one case Supreme Court held that it is a sad state of affairs in a country like India that where the law breakers are the lawmakers। यहाँ law breakers आज की डेट में law makers हैं, बड़ी sad state of affairs है। और इसलिए right a good step was taken somewhere in 1993, right, and then Vohra Committee was set up to go into the depth of this particular menace। जो हमारे criminalization of politics का जो issue है, इसको डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, राइट, वाज द होम सेक्रेटरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही गेव सर्टेन स्टार्टलिंग रेवल्यूशंस, स्टार्टलिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द काइंड ऑफ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड द क्रिमिनल्स, राइट। किस तरीके से एक विशियस सर्कल ऑपरेट होता है। बहुत से पॉलिटिशियंस अल्टीमेटली ये इन गैंग के लीडर्स हैं, गैंग लॉर्ड्स हैं, राइट, और अल्टीमेटली वो इलेक्शन लड़ते हैं। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन सेवरल केसेस लाइक ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इन द रिसेंट पास्ट दैट इज इन 2020 राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट गेव सर्टेन फार रीचिंग guidelines to the Election Commission of India that such steps must be taken in order to curb the criminalization of politics, right, so that हमारी political life ultimately clean हो इन क्रिमिनल एलिमेंट से। और सबसे बड़ी डायरेक्शन ये थी कि हर जो कैंडिडेट जो पॉलिटिकल पार्टी फील करेगी, राइट, जिसको टिकट देगी, उसको ये राइट अपनी वेबसाइट पे राइट लिखना पड़ेगा, इवन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने इस कैंडिडेट को, इस पर्सन विद टेंटेड बैकग्राउंड आपने इसको टिकट दी है, राइट, और इसको फील्ड किया है द कैंडिडेट, राइट, और वो कितने कितने टाइम में देनी है, कैसे उसको अपलोड किया जाएगा, इवन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ऑल दीज गाइडलाइंस वर कैटेगोरिकली इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2020 इन राम बाबू सिंह ठाकुर। ये केस भी आपने मेंशन कर देना है, राइट, और उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या डायरेक्शंस अल्टीमेटली राइट पास ऑन की, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो लॉ एज सच इन इंडिया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के आज की डेट तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया। ऑल्दो वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन प्लेस, 1951 का हमारे पास लॉ है, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, वो भी उन इंडिविजुअल की जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, कन्विक्शन के बाद, ठीक है, कन्विक्शन जिसकी हो जाती है उसके बाद, वो भी किसी ऑफेंस में जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा है, उस केसेस में राइट वो लॉ प्रोवाइड करता है। अदरवाइज ऐसा कोई लॉ नहीं है। और
जो हमारे लॉ मेकर्स हैं दे आर नॉट सीरियस टू मेक ए स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और इसलिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे देश में पिछले 2 डिकेड से काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है हमारे देश में। ठीक है, तो दिस इज हाउ, ठीक है, तो वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। एक कोटेशन से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इसको डिफाइन किया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है, ब्रीफली मैं आपको बता, फिर हमने बोला कि इसके रीजंस क्या हैं, तो रीजंस मैंने आपको ब्रीफली बताया, फिर हम बोलेंगे इसका सोसाइटी और इंटरनेशनल हमारे इंटरनेशनल इमेज, सो फार एज इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडिया इज कंसर्न, राइट, जिसको एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसके ऊपर क्या असर होगा, राइट, हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा, ये भी आपने अपने एसे में कोट करना है, रेफर करना है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग द टॉपिक एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर इशू, राइट, ऑन द सोसाइटी एंड एट द इंटरनेशनल लेवल, जो आप मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, right? Then you are supposed to, since it is an essay, then you are supposed to quote some statistics. आपको कुछ डेटा भी पोर्ट्रे करना है। एक मैंने आपको बताया था जैसे कि एक आपने एनजीओ एक इलेक्शन वॉचडॉग का रेफरेंस देके उसका जो डेटा है कि कितने क्रिमिनल छवि के लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, राइट, कैसे कैसे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है सिंस 2001, कैसे कैसे बढ़ता जाएगा। प्रेजेंटली वी हैव 43% MPs who have been elected to Lok Sabha, right, with criminal background, with criminal background in the sense either cases have been registered against them for heinous crimes, right, or against some charge sheet have also been filed, or charges have also been framed by a competent court, right. Then आपने ये statistics कोट करके then consequences देखने हैं इसके, and finally क्या क्या initiatives लिए गए with the passage of time as to decriminalize the politics in India, ठीक है, इसको decriminalize करने के लिए क्या क्या steps लिए गए, उन steps को आपने पोर्ट्रे कर देना है कि वोहरा कमेटी पहला सबसे बड़ा स्टेप था, एंड देन वोहरा कमेटी 1993 में, राइट, जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिमांड की, राइट, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से सबसे ज़रूरी रिफॉर्म ये है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जाए, और कैसे कैसे, राइट, उनकी उस कमेटी की गाइडलाइंस या डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या क्या डायरेक्शंस दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, राइट, कि कैसे, राइट, यस, गुड इवनिंग, राइट, decriminalization of politics effectuate किया जा सकता है, and then you have to conclude the way forward कि वे फॉरवर्ड आप इसमें आपको ये एक्सपेक्टेड किया जाता है आपसे कि यू शुड नॉट बी टू मच पेसिमिस्टिक अबाउट कि सब कुछ खराब है, कुछ नहीं हो सकता, यू शुड पेंट ए रोजी पिक्चर रादर कि यस ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐसे में कि यस, राइट, ऑल्दो देयर इज ए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड needed reforms are required or widely called for, but much has been done, right, in order to cure the Indian politics and Indian democracy from these this manners of criminalization of politics, और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे आज की डेट में, राइट, स्पेशली सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हम देखते हैं दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा इन 2013। नोटा का इंट्रोड्यूस करना ही सबसे, नोटा को एग्जाम्पल कोड कर सकते हो वे फॉरवर्ड में कि नोटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज बीन टेकन to cleanse the Indian politics from these criminal elements, because Nota gives an option to the voters to reject any of the candidates, right, who they feel that he or she does not deserve his or her valuable vote. तो नोटा एक्सरसाइज करके वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नोटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट, नोटा इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ यही था कि क्रिमिनल को बाहर निकाला जाए, और उसका इतना इफेक्ट हुआ कि सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा, अब political parties, in order to save their image, they deliberately field candidates from the impeccable background, impeccable integrity के जो लोग हैं, जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं, उनको टिकट देते हैं rather than to criminals, right? तो ये नोटा का बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आपने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे देश में लिया गया है, right, in this direction that much more steps, right, shall be taken in the time to come, right, and and this menace of criminalization of politics would be eradicated from the from the political landscape of India, ठीक है, so that Indian democracy would remain as
as vibrant and as robust as it used to be when our constitution came into force. Is that clear? So having said that, right, ये मैंने आपको brief इसका overview दे दिया. अब हम इस PPT में देखते हैं कि हम कैसे इसको, right? So पहले मैंने आपको बताया था कि it is better to start your essay with an interesting quotation, right? Because that can fetch you good marks, and that's why criminalization of politics के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैंने ये कोटेशन सेलेक्ट की है. पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स. मैंने आपको पहले बताया इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स मीन्स जो लोग कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होते, अल्टीमेटली दे एंड अप राइट बीइंग द पॉलिटिशियंस. ठीक है, प्रॉबेबली दिस इज द रीजन दैट पॉलिटिक्स इज लुक्ड एट विथ कंटेम्प्ट बाय ऑर्डिनरी मैन. ऑर्डिनरी लोग इसको बुरी नज़र से इसलिए समझते हैं बिकॉज राइट ये स्टेटमेंट यहाँ से अपने आप जस्टिफाई होती है क्योंकि पॉलिटिक्स में राइट लास्ट ऑप्शन जो कोई भी आदमी है वो लास्ट ऑप्शन पॉलिटिक्स में इसलिए रखता है क्योंकि पॉलिटिक्स ही एक लास्ट ऑप्शन है जब वो दूसरी सभी एरेना से फेल हो जाता है. तो दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट टू जस्टिफाई पॉलिटिक्स द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स. सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट एंड राइटर जिसने ये कहा था. दिस कोट बिकम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी when it comes to the merits of criminalization of politics, especially in a democracy like India, which has been witnessing an upward trend in the criminalization of politics over the past couple of decades, particularly, around 2 decades, right? This country has witnessed a spurt in the entry of criminal elements into, not into the politics, but also getting elected to the houses. First couple of decades. This throws around a vital question. Are we really a thriving and vibrant democracy as is generally claimed? ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्टरी में दे देना है. What is it? तो मैंने आपको पहले बताया था criminalization of politics as is self-explanatory. It means the entry of the people, ठीक है, into the politics, right? Not only contesting the election but also getting elected is called as by the criminal elements, right? Is called as criminal. The criminalization of politics means the participation of criminals in politics, which includes that not only the people with criminal background enter into political arena by contesting elections, but also getting elected to the parliament and state assemblies, and ironically participating in the lawmaking process of the country. It amounts to a mockery of the democratic process when the lawbreakers become the lawmakers. Right? Among several factors responsible for the menace, it is argued that it happens primarily due to the nexus between politicians and criminals. उसकी वजह से होता है. Ironically, this unholy nexus between the two turns out to be a win-win situation for both, as each thrives on the expense of other. ठीक है, एक politicians एक criminal को right protection देता है, refuse देता है, as we generally witness in movies, right? और जो criminal है वो पॉलिटिशियंस को इलेक्शन विन करने में हेल्प करता है. तो दोनों का एक अनहोली नेक्सस है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. बट अब ये सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द रिसेंट पास्ट वेर इन द क्रिमिनल्स आर अर्लियर दे यूज टू सपोर्ट देयर पॉलिटिकल मास्टर्स फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, उसके लिए इलेक्शन सपोर्ट करते थे, उसके इलेक्शन जिताने में हेल्प करते थे. बट अब ये लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में कौन से मेंबर बन के आते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, व्हेन वी से दैट लॉ ब्रेकर्स आर लॉ मेकर्स. राइट, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया. अब देखो इंडिया में हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, द स्टेट ऑफ अफेयर्स, द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. Over the last 2 decades, the influence of the criminals in the political arena has shown a tremendous presence. Earlier, these criminal elements used to influence the elections from outside, but now they have become an intrinsic part of the political system by contesting the election themselves. अब वो खुद लड़ रहे हैं. This state of, इसको भी आप कोट कर सकते हो. If you are not in a position to recall a particular quote, then आप किसी anecdote से या किसी एक सोर्स की कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, तो ये भी मैंने कोट किया है. राइट, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक बड़ा कमीशन हमने सेटअप किया था अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RS वेंकटचलैया, राइट, 2000 में, जिसने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया. ठीक है,
it said that National Commission to review the working of Constitution, it said that the nexus between the criminal gangs, police, bureaucracy and politicians has come out clearly in various parts of the country. Nexus, okay, between the criminal gangs, police, bureaucracy and politicians has come out clearly in various parts of the country, and that some political leaders become the leaders of these gangs. कुछ political leaders इनके gang के leader बन गए हैं, armed senas, and over the years get themselves elected to local bodies, state assemblies and national parliament. आप इधर कह सकते हो NCR, अगर पूरा लिखना है आप तो लिख सकते हो National Commission to Review the Working of Constitution, ठीक है, जिसने ये राइट हमें इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया कि क्रिमिनल्स कितने ज़्यादा नंबर में राइट हमारे इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं. ओके, स्टैटिस्टिक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे में आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स बिकम सेल्फ एविडेंट, राइट? इशू ऑफ criminalization of politics become self-evident when we look at the statistics indicating the percentage of people with tainted backgrounds have entered the political arena of the country and eventually finding a place in the legislative bodies. According to new National Election Watch, NEW, National Election Watch, a national-wide campaign on electoral reforms active since 2002 and ADR मैंने आपको पहले भी बताया, a watchdog on electoral democracy since 1999, the percentage of MPs having criminal cases pending against them shows a startling trend. Like 2001 में 24% थे, right? 2009 में 30% हो गए, 2014 के इलेक्शन में 34% हो गए, and 2019 के इलेक्शन में 43% MPs, right, in the Lok Sabha are ironically from the criminal background. तो ये statistics आप कोड कर सकते हो. Next, reasons behind criminalization of politics. Reasons क्या है? I have given you a brief introduction earlier कि main reasons behind कि जितने भी laws, right? हमने हमारे पास एक Representation of People Act है जो कि qualification और disqualification को prescribe करता है, right? In spite of several directions from the Supreme Court, right? And several judgments, right? Nothing much has been done, but उसका सबसे बड़ा reason criminalization politics ये है कि legislature, right, is not serious. The members, who are ultimately from the criminal background, they are ultimately the legislators, right? They are not serious to deal with this particular issue through a legislative enactment. वही serious नहीं है. तो यही है. In spite of taking lack of political will आप कह सकते हो. पहला reason है. In spite of taking appropriate measures to amend the RPA Act, Representative People Act, there has been an unexplained understanding among the political parties which deters Parliament to make a strong law covering criminalization politics. So lack of political will is the main reason because हर political party, right, जो कि Parliament या legislative bodies में represent करती है, right, they have fielded their, persons from the criminal background and even some of them are elected to the houses, right? Therefore, they are not serious because they have themselves fielded those candidates from criminal background with criminal background to the parliament, right? Therefore, they are not serious to deal with this issue and therefore, there is a lack of political will to deal with this issue. तो ये reason भी आपने mention करना है. Lack of enforcement. Several laws and court judgments have not helped much due to lack of enforcement of laws and judgments. ठीक है, due to lack of enforcement. तो बहुत से judgment दी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, right? लिली थॉमस केस में लिली थॉमस के जन चौकीदार ने लिली थॉमस केस इन 2013, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को इंटरप्रेट किया था जिसमें कहा था कि राइट कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट हो जाता है, राइट, तो इन स्पाइट ऑफ हिज अपील पेंडिंग इन हायर कोर्ट्स, राइट, प्रोवाइडेड ही फाइल्स अपील विद इन 90 days ऑफ हिज कन्विक्शन, राइट, तो वो डे 1 से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. जस्ट लाइक लालू प्रसाद यादव बिकेम डिस्क्वालीफाई, राइट, तो वो डे 1 से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अदरवाइज लॉ में ये प्रोवाइडेड था कि जब तक उसकी वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करता और अपील जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होती उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. इसके बावजूद भी, इतनी जजमेंट देने के बावजूद भी, राइट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट सम पर्सन कैन मूव ए पिटीशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, बट राइट
लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, कि पोलिटिकल पार्टीज, वो मेन क्वेश्चन वही है कि लैक ऑफ पोलिटिकल विल, ठीक है. अदरवाइज the moment Supreme Court or judiciary gives a judgment on a particular issue, it becomes a duty of a legislator, law makers की ड्यूटी है कि उसको लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट करें, बट ऐसा नहीं करते बिकॉज पोलिटिकल विल नहीं है. Narrow self-interest. I have already indicated that. Another reason for criminalization of politics is that the voters ultimately vote a candidate on the basis of his or her community or caste-based affiliations. उसके बेसिस पे वोट करते हैं, and they have no concern whatsoever with the criminal background of that particular person. तो कौन सा narrow self-interest है. Publishing of entire criminal history of a candidate, ठीक है, fielded by a political party may not be very effective, as a major chunk of voters tend to vote through a narrow prism of community interest like caste or religion. Voter specific कहते हैं. So this is another factor for enhancing criminalization of politics. Then use of muscle and money power, that I have already explained, that ultimately these elements, they have not only money power but they have also muscle power. बाहुबली हैं ये. इसलिए candidates with serious records seem to do well despite their public image, largely due to their ability to finance their own elections and bring substantive resources to the respective parties. ये क्रिमिनल है जिसके पास मनी पावर भी है और मसल पावर भी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सब कुछ लेके आता है, एंड दिस बिकम द मेन रीजन दैट पॉलिटिकल पार्टी फील दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट. राइट. Also sometimes voters are left with no options as all competing candidates have criminal background. Although this problem has been solved to a greater extent by the introduction of nota, okay, on EVMs today. What are the consequences? The consequences अपने को highlight करते हैं from the society viewpoint, ठीक है. किस तरीके से लोगों का कैरेक्टर खराब होगा अगर क्रिमिनल छवि के लोग हमारे लेजिस्लेटर बनेंगे, बिकॉज हमारा यूथ अल्टीमेटली लीडर्स के ही कॉपी करेगा, और किस तरीके से हमारे देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे होगी अगर हमारे लेजिस्लेटर क्रिमिनल और टेंटेड बैकग्राउंड के आते हैं. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपने इस कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट करने हैं. अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो है ही है. इट लिमिट्स द चॉइस ऑफ वोटर्स टू इलेक्ट अ सुटेबल कैंडिडेट. It thus goes against the very ethos of free and fair elections, which is the bedrock of our democracy. ठीक है. एक तो free and fair election, which is in fact one of the basic features of Indian polity also, right? उसको भी affect करता है because right क्योंकि हमारे voters जो choice है वोट एक्सरसाइज करने के लिए करने के टाइम वो यूज़ करता है, that is seriously affected, seriously marred, because he or although कि काफ़ी हद तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, that is the introduction, through the introduction of nota, but ultimately nota has again no effect because ultimately the candidate may be from a criminal background who gets votes even less than that of nota, he or she will be elected. ठीक है. तो nota is not that much effective. Affecting good governance, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि governance is all about delivery of services to the people, timely delivery and quality delivery of services to the people. When the people from criminal background get elected to the legislature, let's say state legislature or the parliament for that matter, they will never care about the good governance initiatives or providing services to the people because they are aware of the fact that they are cocksure of the fact that next time they will again get elected with the strength of their muscle and money power. ठीक है. तो affects good governance also. Affecting integrity of public servants, of course, because there is an unholy nexus by virtue of these criminals, between the politicians and the bureaucrats. So public integrity of public servants, they also indulge into corrupt, and other unethical practices because, ठीक है, ultimately the public servants कहते हैं ना, ये जनरली कहा जाता है कि a public servant is like a litmus paper who takes the color of his political masters. जैसे political masters होंगे वैसे ही हमारी public service होगी because public servant एक litmus paper की तरह है who takes the color of political master. If the political master comes with the color of a criminal, then it seriously affects the ethical conduct of public servants also. ठीक है. So it also leads to increased circulation of black money and therefore corruption and all that. So it has serious consequence, so far as the functioning of society is concerned. तो society के लिए भी बड़ा causes social disharmony. It introduces a culture of violence in society and sets a bad precedent for the youth
बिकॉज अल्टीमेटली यूथ फॉलो द लीडर्स, दे इमुलेट द लीडर्स। अगर हमारे लीडर्स ही अच्छी छवि, अच्छी बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो हमारे यूथ वो भी यही समझेंगे कि क्राइम करके, राइट, अनएथिकल कंडक्ट करके लीडर बना जा सकता है, और राइट, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स आवर सोसाइटी, राइट, फ्रॉम दिस viewpoint also. And finally, it affects the image of India, which is considered as one of the vibrant, democracy and largest democracy in the world, right? When our parliamentarians, when our legislators come with criminal background, right, you can well imagine the international image which India carries in the psyche of the international community, right? Right, finally, द इनिशिएटिव्स। अब हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए? इनिशिएटिव्स मैंने आपको पहले बताया, द वोरा कमेटी रिपोर्ट 1993, ठीक है, द फॉर्मर होम सेक्रेटरी एन वोरा, राइट, हु वाज अपॉइंटेड एज the chairman of this important committee. This committee is known after his name, that is Vohra Committee. First major committee on criminalization politics, constituted to identify the extent of the politician criminal nexus and recommended ways in which this menace can be combated. This committee exposed the vicious politico-criminal nexus. इसने expose किया running in the country which was virtually running a parallel government. यहाँ तक क्या कि ये criminal और जो politicians हैं ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं इस देश में, राइट। इट आल्सो डिस्कस क्रिमिनल गैंग्स हु एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ पॉलिटिशियंस बिलोंगिंग टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज दे एंजॉय। इट मेड अ स्टार्टलिंग रेवलेशन एज टू हाउ द पॉलिटिकल लीडर्स हैड बिकम द लीडर्स ऑफ दीज गैंग्स। In 1997, the Supreme Court recommended the appointment of a high-level committee, ठीक है, इसकी वोहरा कमेटी के रिकमेंडेशन 93 की बात है, to ensure an in-depth investigation into the findings of the Vohra Committee and to secure a speedier prosecution of those involved, right? तो ये इनिशिएटिव। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल प्ले किया, राइट, सो फार एज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज कंसर्न, ठीक है, उस पर अपने यस what should be the first, okay, Abhishek, what should be the first line of introduction, right? I have already given you two options, right? Suppose this is the topic that you have in your exam, ठीक है, in your आपके पेपर में ये टॉपिक आता है क्रिमिनल पॉलिटिक्स, ठीक है, राइट, स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या व्हाटएवर, ठीक है, या क्रिमिनल पॉलिटिकल, राइट, नेक्सस ए विशियस सर्कल, कुछ ऐसा आपको पूछा जाता है, तो आप, राइट, एक कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करके, एक्सप्लेन करके, या आप नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताया था उस स्टेटमेंट को कोट करके भी आप शुरू कर सकते हो, सीधा ही इन्वर्टेड कामा में, राइट, पूरी स्टेटमेंट को कोट करके जो उसने रिवील किया कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर आप सीधे उस पर आ जाएगा, व्हाट इज इट, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स, राइट, एंड व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन, फिर आप उस पर आ सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट, राइट। सो observing an alarming trend in the criminalization of politics in India, the apex court was constrained to issue the following guidelines to be strictly implemented by the Election Commission of India. ये केस आप कोट कर सकते हो क्योंकि इससे आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज ये आपके एस्से को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि राइट, टू स्टेम द रॉट जो हमारे देश में सिस्टम, जो रॉटिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें कोई लेजिस्लेचर इनएक्टिव है, कोई एक्शन नहीं लेता, राइट, कुछ इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन टू फिल इन द वैक्यूम, राइट। उसको देखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राम बाबू सिंह, मैं लेटेस्ट जजमेंट बता रहा हूँ, अदरवाइज देयर आर सो मेनी जजमेंट्स अर्लियर आल्सो, राइट, जो मैंने आपको आपको बताया ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, 1993 की जजमेंट है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस भी इशू की थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अपने एसेट्स, मूवेबल, इमूवेबल, कितनी लाइबिलिटी है, सब कुछ डिस्क्लोज करेगा एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। उस वक्त भी ये कहा था, ठीक है, बट ये मैं लिसन 2020 की जजमेंट को होता टू कर्ब द मेनेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। पहला ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इट शैल बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन लेवल
to upload on their website detailed information regarding individual political parties को करनी है, ठीक है। 1993 के जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि कैंडिडेट को अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने एंटीसीडेंट, अपनी क्वालिफिकेशन सब कुछ बतानी है, राइट। और उस जजमेंट को पार्शली इंप्लीमेंट किया था पार्लियामेंट में बाय इंसर्टिंग सेक्शन 33A, ठीक है, इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बट इट वाज ओनली पार्शियल, राइट। ओके, सो ये 2020 के जजमेंट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो कैंडिडेट को फील करती है उसको क्या करना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट रिगार्डिंग individuals with pending criminal cases, including the nature of the offences and relevant particulars such as whether charges have been framed, the concerned court, and the case number, etc., who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidate. ये भी मेंशन करना है कि दूसरे लोग क्या जो साफ सुथरी छवि के लोग थे उनको क्यों नहीं आपने फील्ड किया, व्हाट इज द रीजन, उसको भी जस्टिफाई करना है, right? Yes, Abhishek. Yes, Ashish. Right. I hope what I have stated you regarding starting an essay. This much is clear to you, right? दूसरा का the reasons as to selection shall be with reference to the qualifications, right? जो आपने रीजन पॉलिटिकल पार्टी मेंशन करेगी उसमें सारे रीजन मेंशन करेगी कि उसकी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की जो फील कर रहे हैं, राइट, अचीवमेंट्स क्या है उसकी, मेरिट क्या है उस कैंडिडेट का, एंड नॉट मेरली द विनेबिलिटी फैक्टर कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है, ये सफिशिएंट नहीं है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, उसका मेरिट क्या है, राइट, ओवर अदर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन गिवन अ टिकट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सो दैट इसका रीज़न ये है, सो दैट जो वोटर हैं, राइट, इसको बताने की ज़रूरत इसलिए है, राइट, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने की भी ज़रूरत इसलिए है, राइट, क्योंकि जो वोटर है उसको ये राइट है कि जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट करने जा रहा है, अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर रहा है आर्टिकल 19 के अंदर, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो उसके पास, सो दैट ही कुड एक्सरसाइज हिज चॉइस, राइट, इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड, जो मैंने आपको बताया जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, राइट, ये पब्लिश कहाँ, वन लोकल वर्नैकुलर न्यूज़पेपर जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश होगा, एंड वन नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, राइट। और याद रखना ये जो पब्लिकेशन के जो चार्जेस होंगे, सपोज एडवर्टीजमेंट दी उसमें, राइट, कैंडिडेट के बारे में, उनको इलेक्शन एक्सपेंसेस में अकाउंट किया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जेब से नहीं खर्चेगी, रादर वो इलेक्शन एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर लेगी उसको। ऑन द ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग फेसबुक एंड ट्विटर, उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन देगी। दीज डिटेल्स शैल बी पब्लिश विद इन 48 आवर्स, ठीक है, of the selection of the candidate, or not less than 2 weeks before the first date for filing of nomination, whichever is earlier, ठीक है। जैसे ही कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी ने सेलेक्ट किया उसके 48 आवर्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे, पॉलिटिकल पार्टी की जो वेबसाइट है उस पर देनी पड़ेगी, या 2 weeks, राइट, बिफोर द डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग, राइट, whichever is earlier. The political party concerned then shall submit a report of compliance with Election Commission of India within 72 hours of the selection, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इशू की, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू फाइल ए रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस कि यस उसने इसको कंप्लाई किया है 72 आवर्स के अंदर, राइट, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन फ्रॉम द 72 आवर्स शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम द कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय देम। इफ ए पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू सबमिट, अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको इग्नोर करती है, then that shall be construed as a contempt of the court, उसको contempt of the court माना जाएगा, और contempt of the court आपको पता ही है that has serious consequences, whether in terms of punishment or in terms of imposition of fine etc. तो उसको contempt of the court माना जाएगा, right। way forward, now the last हम इसको conclude कर रहे हैं कि way forward क्या है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड एक इसका यही होता है, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, सिंस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ह्यूज सम्स ऑफ मनी, पॉलिटिक्स में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। पॉलिटिक्स या इलेक्शन लड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है, दैट फैक्ट इज क्लियर, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव in the current times, right, that it is only the people with
high heels they are capable of running this or contesting this election. तो एक इसका अल्टरनेटिव वे फॉरवर्ड होता है कि लेट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस राइट बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज रिकमेंडेड बाय Law Commission also. Law Commission in its recent report, right, also recommended. Even Dinesh Goswami Committee. Dinesh Goswami Committee very important to hear, right? Dinesh Goswami Committee recommended the state funding of elections. State funding of elections, and even former election chairman of election commissions also, right, vouched for the state funding of elections. जिसमें ये होगा कि मनी का जो यूज़ होता है इलेक्शन के, जो कि क्रिमिनल यूज़ करते हैं, वो मनी का यूज़ कम या ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट फंड करेगी सभी पार्टीज़ की इलेक्शंस को. उसके लिए क्या वो क्राइटेरिया बनाती है राइट, ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसे फंडिंग की जाएगी, किस बेसिस पे पैसा दिया जाएगा पॉलिटिकल, बट स्टेट फंड करेंगे. तो दिस इज़ वन वे ऑफ कर्बिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये आप कहते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी हैज़ रिकमेंडेड और emphasized for the state funding of elections, right? Somewhere Indrajit Gupta committee, Indrajit Das Gupta on the electoral reforms have recommended for the state funding of elections, which will curb use of black money to a large extent and thereby will have a significant impact on limiting criminalization of politics. So state funding of election आपने quote करना है. State funding of election means state will fund the elections of the candidates rather than right the candidates funding या political parties funding, because political parties जब fund करती हैं तो ultimately they will fund through by raising black money or by attracting criminal gangs into their fold, right, who have the advantage of not only money power, black money, or but also muscle power. Second, legislative powers to the ECI. It is also desired that as of now Election Commission of India incidentally is toothless in the sense that उसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है. उसके पास पावर्स वही हैं, ठीक है, जो पीछे रह जाती हैं, जो लेजिस्लेचर में हमने नहीं लिखी है. अदरवाइज ये सारी पावर लेजिस्लेचर देता है इलेक्शन कमीशन को. तो कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर्स सो दैट राइट इट कैन इन्फोर्स राइट द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिगार्डिंग द डीक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स राइट effectively. Regulating the affairs of a political party is essential for a cleaner electoral process. Therefore, it is imperative to strengthen the election commission. This could happen by giving certain legislative powers to the commission. Then, thirdly, educating voters. This is also very important way forward. ठीक है, in order to decriminalize politics. ये conclusion में आना चाहिए आपको. Voters also need to be vigilant about misuse of money, gifts, and other inducements during elections. ठीक है, तो वोटर्स को भी एडुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, राइट. लेट इट बी इंसर्टेड. इनफैक्ट वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स दैट let it be inserted as a part of fundamental duties, right, in the constitution, wherein voters must be imposed with the duty to cast vote, right, and before that they must be educated regarding the value of their vote and not to vote for criminal elements. And finally, judicial step in, that we have already discussed that, right. In case legislature fails, अगर legislature कोई लॉ नहीं बनाता, जो कि आज तक उसने नहीं बनाया, ऑल दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पार्शली सेक्शन 33A इंट्रोड्यूस करने के बाद थोड़ा बहुत किया उन्होंने, बट एज ऑफ नाउ राइट दिस इज इंटायरली, दिस एरिया इज सो इमॉर्फस कि इट हैज़ नो लेजिस्लेशन सो फार एज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आर कंसर्न. तो फिर अल्टीमेटली यही हो सकता है कि पार्लियामेंट, इफ लेजिस्लेचर becomes inactive in this area to make an effective law, okay, to regulate the electoral process, right, and to cure the Indian politics from the menace of criminalization politics. So it is desired that judiciary must step in, okay, to deal with this particular area, as it has done in many other areas, like in Vishaka guidelines, right, when parliament fails to make a law regarding right sexual exploitation of workplace, then ultimately Supreme Court issued certain guidelines, right, to regulate right this particular menace of exploitation at workplace. So same job can be done right by the Supreme Court. So it is desired that let the legislature come forward and make a strong law, right,
to deter the criminals from the criminal process, right? Else judiciary must step in to rein in, okay? To rein in. Judiciary must step in to clear, to fill the vacuum that is created by legislative inaction, right? So this is the way forward to आपने लिखना. But however, right, in spite of in spite of witnessing an increasing trend of criminalization politics, right, significant changes have been witnessed in India, right. अब आप ये कह सकते हो बहुत सी अच्छी चेंजेस हमने देखी हैं, और उससे सबसे बड़ी चेंज हमने देखी है which has considerably reduced the entry of criminal elements in the electoral process, that is the introduction of nota in 2013. nota on the recommendation, on the direction of the Supreme Court. 2013 में जो nota introduce हुआ, at least it has now sent a signal to the political parties that, right, in order to avoid their self being castigated or rejected by the voters through nota, कि इससे पहले कि लोग हमें रिजेक्ट करें नोटा के थ्रू, राइट, हमारे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि हम अच्छी छवि का कैंडिडेट फील करें, राइट, क्रिमिनल बैकग्राउंड का वो कैंडिडेट ना हो, राइट, अच्छे मेरिट का, क्वालिफिकेशन का आदमी हो, राइट, जिसको हम टिकट दें, राइट, जिससे वो अपनी साख या अपनी इज्जत बचा सकते हैं, राइट. तो आप लोग कि राइट, मच हैज़ बीन डन, राइट. So you must end your essay on an optimistic note rather than pessimistic. ये way forward देखते हुए. I hope this much is clear, right? And this is the whole topic, right, that we have discussed, zeroing in on the different aspects of criminalization of politics, right, and delving into those particular areas which call for an effective yet high scoring essay कैसे लिखना है, right? So with this I hereby say goodbye and hope to meet you next time with another interesting topic from Indian polity and governance. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care.